Welcome, General Pandey, sir. It's a pleasure to have you. And I've been reading about you, plus, I already told you that I am from Valley myself. I have my roots from there. So I already have that connect with Indian Army with me. I do see armed forces with that sense of pride, with that feeling that there is security at our homes. Thank you so much for your time, sir. It's a pleasure to have you. To begin with, sir, I want to rather see things globally first, and then we can eventually go into layers and layers and layers of how it is happening actually in our country. At this moment, when we see this whole Iran US fiasco happening, and then Iran being part there and having its particular announcements or attacks or however it is coming out in the world, there is one thing from India's lens that was missing, was continuously pointed out by people as well, that why is India silent? An attack happened on Iran. Then people were saying like, oh, why India is not responding? Or why India is not giving a response to this? Or why are they not condemning this particular incident? So when you as a seasoned veteran see this situation yourself for India, how do you like calculate this for India? Is this strategic silence correct or it's not? So, when you're an armchair commentator, you can comment on anything. I hope you're not referring to me. No, not you. And this is very unfortunate, but that is how the practice is. That somebody who sits on the sidelines has got all the leeway, the entire room space to make a comment. Because if you do, you're doomed. If you don't, you're still doomed, right? For them. And therefore, I will not like to worry about their comments. Second is, we have elected a government, right? The government may not be good or a bad government or in the perception of anybody, but it is an elected government. We are in a true democracy, right? So there are people who are responsible. They are responsible today. There was some government responsible 5 years back. There's another set of government responsible 20 years back, right? So they are into every possible nuance of implications of what they do, what they say, and what they don't do and what they don't say, right? So I will put to their judgment, and they're not newbies. People may say anything, but the fact remains, Aftab, that in last about 78 years, in spite of our sluggish nature of our country, In terms of diplomacy? no, overall, our country has come a long, long way, right? So there must be smarter people handling the situation, sometimes bumming along the road, but sometimes correcting themselves to come on the road, onto the correct path. So firstly, let's put this at ease. The guys responsible today, we must question. We must have our views, but we should not get carried away by the views. Coming on to this part of the strategic silence, I don't think so. There is a strategic silence about it. And India, in the past, has not immediately reacted to a situation. Like, let's say, even for an attack which has happened. Attack happened on Pulwama, our reaction took place after 12 days. Yeah. Our attack happened, people were killed in Pahalgam. Our response happened after 15 days. Spontaneous, immediate reaction may not get you the dividends which are required to be given. Right? Similarly, they have to mull over the responses. Everything is not cut and dry in geopolitics, international relations. There are, when you pull one string, there are others which get broken, there are others which get taut. Right? So you have to be very careful in what you're doing, especially in a complex scenario of West Asia, Middle East. Middle East is hugely complex. The relationship between each of their countries is not what is seen to be in the face of it. Right? Is it the relation with US or you are in general I'm referring talking of to in them? general in Middle East amongst themselves. Right? Now when you add a layer of US, it takes a different color itself. When you add Israel, it has got a religious, it's got a different connotation. Now when you add in this a layer of
the Trump behavioral pattern which is now going on, it takes a different animalship. So you understand what? So some event happens, you bomb, you kill Khamenei, and then bingo, everybody wants everybody to tweet off, and say something onto the Twitter handle. May not be an appropriate way, and India has never reacted in a similar manner. Overnighters, even on very 0 and 1 postures, there also we have taken a call, a considered call. So it is part of our DNA, right? Suddenly to tell this current government to respond in a particular manner may not be right. So they responded. But then But they responded in a different manner. Yeah. There's a minister, somebody went, they signed a book, which was placed by the Iranian embassy, which was done in a formal, a diplomatic manner which has been established over a period of time in a country. But does it put India in a backstep? Because this happened during Operation Sindoor as well. I mean, you have the President of America, the great President of America, coming in and tweeting about you, your internal affairs. And then the information comes from ministry later on. So are you saying that on information domain we are on the back foot, or in overall diplomatic arena we are on the back foot? They're two different things. Information domain is totally different than, while it does contribute to perception. Yeah. But in the diplomatic domain, where have you been found wanting? Your oil is coming, your gas is coming, the sources have changed, even things from Iran are coming, wherever it has come, our assets are coming from. So 2 or 3 principal direct adversaries in this game, US, Israel, Iran, right? We don't have any animosity with either of them. And our job which is required to be done to look after 1.4 billion people continues to be done. Now you add another layer to it. Iran has fired into the other Middle Eastern countries, 6, 7 of them, Bahrain, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Middle UAE, East countries. They're fired. Have our relationship been soured with them while they know that we are continuing to engage with Iran as well? So isn't it a deft diplomacy? This requires the highest acme of diplomacy, in which everybody who's a target continues to engage with you, continues to do trade with you, continues to do business with you, but yet, they are fighting amongst each other. So let's give credit where it is due. You don't have to thump the table all the time to say that I am with Saudis, I am with UAE, I am with Iranians. But there's lines which are open. I'll give one example. When Dena sank, right, that Iranian naval ship was sunk in Indian Ocean, not off Indian shore. So a lot of people make off Indian shore. It was sunk off the Sri Lankan shore, right? If you draw the line, Sri Lanka, the huge piece of land, comes in between where Dena sank and where we are sitting. We have given shelter to the ship which is locked in with us. I can tell you with full confidence that the Americans would have pushed India to hand over the sailors, hand over the ship, the way the Americans are. Of course. Right? They would have. Has India given the sailors to them? No. They were put on a ship, on a flight. They were sent back to Iran. By sending back to Iran, don't you think what is happening? That those number of sailors are not joining the fight against the Americans and Israelis and other countries. These are major signaling that we aren't taking sides in this fight. But then what is our side? Our side is 1.4 billion people of India. Yeah. Right. But then in diplomatic front, what is our side? That is also our side, isn't it? That's why the flow is happening. That's why the trade is happening. That's why lines are open. That's our side. Why should you take a side of the US, which you know very well, that tomorrow it will just turn to somebody else? Why should you take a side of Iranians where they may be wrong, may be right? We don't know. It's all about perceptions. Right?
So I think the Indian government has taken a side of India. Like everybody else, Iranians are not taking sides with the UAE or Saudis or anybody. They're taking side of Iranians. Iranians. Americans are fighting for Americans, not for Israel. Some not people for say UAE. they are fighting for Israel. No. I have written an article on that. Yeah. A paper which has been published that their fight is for American. That if you ask a question, I'll answer that also. Right? Yeah. So every country is fighting for itself. Has China intervened? Has China come out and said we are totally only with Iran and not with others? Not with Saudis and not with the UAEs? They have said that the war is illegal. Americans should not have bombed. But then they have got issue with America. The last point I'll just put it across through to you and to your viewers is, do you think India is that powerful? In comparison to who? To anybody. At the cost and risk of 1.4 billion people, they can start taking sides this way or that way. Do you think that India has got those leverages which are required to be a power to thump? Which country is thumping on the table? When you look at the answer, you will find that where we are today, the position which you are taking is the right position. You are neither America nor even China. If China is unable to take a posture or join hands in this fight, then where are we? And it's very interesting, sir, you mentioned about China. I eventually wanted to ask this as well. Is China actually getting benefit out of this war? Because if you see, US is occupied and busy with Middle East already. It's dealing there. So is China having any geopolitical benefit from this Iran-Israel-US war? In what sense? Could be any senses. It could be business partnerships. It could be getting proved as a more reliable partner. Look, okay, I wrote an article on Asia Analytics about this. You know, Pakistan gets its 85% of weapons and equipment and hardware from China, right? Correct? Yeah. Why is it playing to the tunes of Americans? Do you think the generals and the bureaucrats and the politicians who are making crores and crores of money through corrupt practices, through everything, or on the normal Pakistani people, where is the money being parked? Is it being parked in China? Right? So, China can never be trusted by anybody for a variety of reasons. Because Chinese have got a different set of ethos, right or wrong, but they have got different set of principles. They work with different set of ethos, and they are a revisionist power, right? And they will come gunning for the people who shake hands with them over a long period of time, right? Not that America doesn't do it, but America is known, you can handle with the American system. You know that today they are with you, tomorrow they are not with you. But when a Chinese give debt, and that debt trap is such huge that your entire country gets compromised with the Chinese. So when you look at the Chinese as an entity of being the more trustworthy power, I don't think so, because it has not displayed anything in last 1 decade, 1.5 decades of being trustworthy, starting from coronavirus. It's this thing. It's support to Pakistan and all terror companies. It is all the muscle flexing which is done in South China Sea and the Taiwanese waters and everything. Encroachment which is done. It is occupied territories of other people, not willing to give away. What is doing in Tibet, what it is doing in Xinjiang. You know, when you add all those things, they are never be. Then dumping practices, right? Stealing technology, reverse engineering. Stealing technology. Yeah, what is reverse engineering? Without taking patent. Yeah, they have gone ahead, but everything they have got from the Western parts. It is basically a copy. Yeah, copy without giving the due rights or the money which is required to be given. I also tell my Indian manufacturers, do it. Everybody is doing it. But our idealistic framework of mind, at least in the worldview,
doesn't allow us to do all this, which the Chinese have done. So, Chinese can never be trusted. One is that. Now, are they getting benefit? I don't think so. From this war, they are not No. getting any benefit. This entire war, America have joined is for the purpose of a thing called, which I've written, is strategic denial. And the strategic denial is to the Chinese. A lot of people are putting point at Trump. And I've spoken a number of times on media, on television, debates, but people want to listen to a short term, that this is a war on Iran. Big powers, when they play games, there are small countries which get sorted out with that, right? This, you start looking a little bit behind. When China started flexing its muscle, it was about 7 to 8 years back, very, very vociferously, okay? Then they started coming to South China Sea, and their ships started moving out, sailing out. It started announcing to the world that we are now going to be a military power and a world power, along with the US, in coming next 5 to 6 years or maybe 10 years, right? That is a time when the Americans have, got awake. What happened? A couple of things which has happened. First thing which happened is the Ukrainian thing which has happened, right? Ukrainian war has not been tied towards Russia actually. It's again trying to hit out, disconnect Europe through the long range which they have gone totally connected to China. Coronavirus happened. They tried to isolate China on that. When they had gone to Venezuela, 90% of the oil of Venezuela was going to China. Denied, right? The whole drug running, you know very well that Venezuela is not actually sending much of our drugs there. There's Colombia, there's Mexico, there are other countries in the region. They have not gone there, but they've gone to Venezuela. Why Iran? It is not about Iran, it's about Hormuz. When you strike at Iran, Hormuz gets affected. Where does the 90% oil of Iran go? China. Where does about 30 to 40% oil which passes and gas which passes through, fertilizer which passes through Hormuz, Strait of Hormuz. It goes to China. right? So when this denial has taken place for 2 months, who gets hit? China. We all get hit. The world gets hit, right? But China also surely gets hit. So one is hitting it internally in terms of economics, in terms of strategy. They've got strategic reserves for about 3 to 4 months, all right. But when those reserves start depleting, there's worry which starts happening. And then you make a bad decision. Then you take a bad decision. And then there are challenges within China also, which is happening. There's a stagnation of economy, there's slowing of the economy. There's so many things which are happening. So you add that pressure to this, right? So America, which was right behind in terms of economic development, was trailing, has now started suddenly coming onto the world theater. So this is through one simple concept of strategic denial of energy routes. Where does energy routes require? Energy is not required for them to run their normal industry, right? They got enough, they will get from elsewhere. It requires to run the chip industry, to wash the material. They require to run those, the data centers, which are guzzlers of energy, right? Where do they get? So while China is very rapidly building on renewables, on nuclear, on solar, on other facets, but the faster it is working, its requirement of energy is also like India. Energy requirement yesterday or day before yesterday has broken all-time high because our middle power, poor section of people are coming to middle section. Middle section are going to upper middle class. So where you had no ACs for 90% of the population, today large section of population is looking at AC. Cars, roads, other accessories which were luxuries 30 years back have become essentials today. Right?
all these demand power. If the Prime Minister Modi has said that you are going to be establishing data centers, he's inaugurating chip manufacturing plants, they require energy. So the energy requirements are increasing. So while you may continue to work at renewables, but this requirement of non-renewables will continue to remain and also rise. It will take time for it to peter off and thereafter reduce. In case of India, it's long shot away. Another maybe 40, 50 years, 60 years off. Yeah. So this denial is the whole game about. Iran was acceptable to America with its nuclear weapons, right? That is why they went for all the agreements. They knew they'd ignore it. But now when the time has come and Iran has pushed itself as an arena for the strategic denial for the Chinese, they've been played. What is the loss to Americans? $550 billion, right? How many men they have lost? 13 they have declared, maybe more, maybe let's say double it, 26. But do you think Iran won here at some point in terms of negotiations or in terms of narrative or in terms of putting itself out there? So please understand, Iran and countries like Iran, they will never lose. Because when you make an ideological framework that if you die, you have served the purpose and you have gone to the ultimate place where you wanted to for a cause, can you win against that idea? You may kill someone and there will be someone next. So when they win, they are winners. When there is a parity, they are still winner. When they lose, they have lost against American power, the number one power. They are still the winner. So when you look at the psychological part, they will never lose. But when you're looking at quantified systems, then do you think they have not lost? Thousands of people have been killed. Of course. The leadership have been shattered. 42 to 50 top leadership, including Khamenei, has been killed. Their capacity to industrial complexes have been sorted out. The destruction which has taken place, which took them time to build, couple of decades have been lost, right? So, and relationship. You understand? The relationship with other, there's a quite unfriendly friendship which was on with UAE, Qatar, Kuwait, everybody, because most of them are Sunni countries. There's Shia. Everybody is an Arab. They are technically Persian now. Hardly any Persians. The time they have adopted the religion. So they are outsiders. But there was some degree of understanding between these people, and there was a balance which was there. But having fired on each of these countries, do you think the relationship is going to flip back to old time, or will it take time to limp and be where it is, right? So when you look at what will happen to America, they'll just roll up the 2 aircraft carriers, 3 aircraft carriers and go back. If these countries ask them to build their bases again, they will build it. If they don't ask, they'll find other places to fight. And about money which they've lost, $600 billion, they'll make it from these same very countries. Yeah. That's the reality. No. The fact is that they will pin it on them eventually. Right? And in a manner, it's right so. After all, you have invested in the American bases for this particular situation. Right? And Iranians have been put to their place. I think Iranians have lost a lot. Americans may not have won, but Iranians have surely lost a lot. तो आप, क्योंकि मैं एक्चुअली इसी पे आ रहा था, मैं जानता हूँ कि आप इंटरनली आपने नैरेटिव वॉरफेयर देखा हुआ है इसमें इंडियन आर्मी में रह के. एक्चुअल में ब्यूरोक्रेसी और प्रेस के रिलेशंस को मैनेज करने में आपको पर्सनली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज क्या लगी? मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं लगी. थोड़ा सा आप दिल रखो, ज्यादा ऊपर नीचे मत पूछो. ठीक है, आप अपने आप, जैसे कश्मीर में था,
मैंने पूरा नैरेटिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की पूरी कार्रवाई करी थी। जब भी कोई प्रेस वाला मेरे से कोई सवाल पूछता था, मैं उसका जवाब देता था। मगर एक हद होती है, एक गवर्नमेंट की हद होती है, एक कंट्री की हद होती है, उसके बाहर नहीं गया और उससे नीचे नहीं गया। आप उस हद के अंदर आकर के बोलिए और बताइए। एंड इवन सर, जब जो अनफॉर्चुनेट पहलगाम का अटैक हुआ था, तब भी एक बहुत बड़ा सेक्ट एकदम से उठ के आ गया था। मतलब लास्ट 10 इयर्स में जो अटैक्स नहीं हुए हैं उसको लोग एकदम से भूल गए और एकदम से इस बात पे आ गए कि आप हार्ट ऑफ कश्मीर में जा गए, हार्ट ऑफ श्रीनगर के आसपास चले गए वहाँ पे, और वहाँ पे आपने सिविलियंस को अटैक किया। तो अगेन किसी को इंटेलिजेंस के बारे में पता भी नहीं होगा, उसने ये सवाल ज़रूर पूछा कि आपके पास आर्मी थी, आपके पास सीआरपीएफ थी, आपके पास जेएंडके पुलिस थी, फिर भी इंटेल फेलियर हो गया। तो जब आपने ये सिचुएशन देखी तो आपने कैसे देखा था इसको? तो जब मैं स्टार्ट किया था ना, जो आर्म चेयर वाले होते हैं उनका काम बोलना होता है, ठीक है। जो बच्चा है उसको ये तो पता नहीं कि खाने में कैसे माँ बना रही है खाना, ठीक है। और वो जिस दिन खाना नहीं मिलता है उस दिन वो कहता है कि आज खाना तुम अच्छी माँ नहीं हो। सो जिनको बोलना है वो बोलते हैं, जिनको काम करना है वो चुपचाप काम करते रहते हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर हर गली और हर किनारे पे हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्स लगा दी जाए तो यही लोग जो बोल रहे हैं इंट फेलियर है, वो उन्होंने क्या बोल रहे हैं? ये मिलिट्री ऑपरेशन है। नहीं, ये पूरा यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन है। हाँ। सो एक तरफ आप चेक नहीं होना चाहते। दिल्ली के अंदर जब पुलिस आपको रोक करके आपकी गाड़ी चेक करती है तो आप ऑपरेशन पे हो जाते हो, मगर रेड फोर्ट का जब हादसा हो जाता है तो फिर आप कहते हो इंट फेलियर हो गए। सो ये जो चीज़ें हैं ये बैलेंस होता है। और हमको ये देखना चाहिए कि जो देश, जो हमारे देश के दुश्मन है वो ये चाहते हैं कि रोज हो, वो रोज हो नहीं रहा, एक समय गैप के बाद हो रहा है। इजराइल जैसा देश जिसके पास इंटेलिजेंस अमेरिका पूरी वेस्टर्न कंट्री के साथ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इंटेलिजेंस देती हैं, उसके ऊपर 7 अक्टूबर जैसा बड़ा हादसा हो गया, जिसके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। मोसाद और जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को हम वर्ल्ड का टॉप नंबर 1 जानते हैं, उनके साथ हो गया। अमेरिका के पास में सबसे, कल असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ ना अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर 2 बार हो गया। हाँ। इट हैज गॉट द बेस्ट इंटेलिजेंस, FBI, CIA, होमलैंड सिक्योरिटी, फलाना ढिमाका सब कुछ। 2 बार प्रेसिडेंट के ट्रम्प के ऊपर, 3 बार हो गया अटेम्प्ट, वो भी यूएस में, वो भी यूएस के अंदर। इंट फेलियर। सो इट्स वेरी इजी टू कम आउट एंड वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। वी आर नॉट इन चाइना, वी आर नॉट इन नॉर्थ कोरिया, वी आर नॉट इवन इन ईरान, जहां आप सड़क के ऊपर आओ और जरा सा बोलो तो आपको उठा के हम पीछे कर देंगे। राइट, वी आर इन अ कंट्री वेयर डेमोक्रेसी इज देयर। एक बड़ा फाइन बैलेंस होता है। इंटेलिजेंस कौन देता है? आम आदमी देता है। उसको सतर्क करना चाहिए, उसको बताना चाहिए क्या हो रहा है। वहां पर आम आदमी भी फेल हुआ। आम आदमी मतलब जिनको पता था कि ये होने वाले, जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स थे आपके। 2 भाइयों के घर में उन्होंने खाना खाया, हथियार रखा, क्यों नहीं बताया उन्होंने? सो देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। वहां पे है प्रॉब्लम। ये कहना कि 2019 में 370 हट गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ऐसा नहीं है। जो एक दिमाग का कीड़ा होता है ना, जब 70-80 साल से वो कीड़ा वहां पे जमा हुआ हो तो 5 साल के अंदर वो कीड़ा नहीं निकल जाता। बाकी सब लोग सही हो गए, बट फिर भी अगर कुछ प्रतिशत लोग गलत रास्ते पे हैं, दैट नंबर इज ह्यूज नंबर। और इसमें मुझे लगता है आपने ये टर्म भी कॉइन किया था जिसे आपने वाइट कॉलर टेररिस्ट बोला था। क्या इनका रोल भी अब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया हुआ है? देखिए, इनका रोल तो हमेशा रहेगा। ये वही लोग हैं जो जब आप चेकिंग करना शुरू कर दें तो वो मिलिट्री ऑपरेशन बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है, डिक्टेटरशिप बोलना शुरू कर देंगे। ये लोग वो हैं जो आपके और हमारे बीच रह करके एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन सोसाइटी के अंदर रह करके अपने बच्चों को अच्छी जगह भेजते हैं पढ़ने के लिए, अच्छी प्रॉस्पेरिटी कमाते हैं, पावर रखते हैं, दूसरे के बच्चों को
बरगला करके उनके हाथ में हथियार पहुंचा देते हैं। ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। उनके वो जिंदा रहेंगे। पहले ऑफलाइन होते थे, आजकल ऑनलाइन भी हैं। ठीक है। सो दे आर वेरी वेरी डेंजरस पीपल। एंड आज के टाइम में तो ऐसा भी मुझे लगता है कि मेरा एक ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे कि ये इंटेलेक्चुअल ग्रुप को ज्यादा टारगेट भी अब कर रहे हैं। जैसे हमने रिसेंटली अभी हमेशा करते थे। लास्ट ईयर लाल किले के ब्लास्ट में भी हमने ये देखा। वो आपको पता नहीं था। हम लोग हमेशा बोलते आए कि जो गरीब है वो का लॉट ऑफ टाइम वी फाइंड इजी आंसर्स। व्हाट इज एन इजी आंसर? पढ़ाई लिखाई कम है, जॉब की प्रॉब्लम है, इसलिए लोग गन उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ज़्यादातर लोग जो है बिहार के अंदर सब गन उठा के घूम रहे होते। ठीक है। बंगाल में लोग गन उठा के घूम रहे होते। बहुत हमारे देश के हिस्से हैं जहाँ पे बहुत पॉवर्टी है। आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले, आपको मालूम है कि वहाँ ऐसी पॉवर्टी नहीं है। ठीक है। वहाँ बहुत लोगों के पास में गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ है, खाने की सिक्योरिटी है, रहने के लिए सब कुछ है, रोड है हर जगह के ऊपर। बहुत दूर दूर आज के ही कश्मीर के किसी भी किनारे में चले जाओ, वहां पर रोड है। वहां पर क्या बोल रहे हैं सर ऐसा कि पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं यहाँ पे? तो आपका जो गुमराह करना होता है, उसामा बिन लादेन बहुत पड़ा हुआ था। जिन लोगों ने जहाज उड़ा करके 9/11 किया, ट्विन टावर के ऊपर डाला, देवर पढ़े लिखे लोग। जो लोग ISIS चलाते हैं, अलकायदा चलाते हैं, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। जब आपकी आइडियोलॉजी आपको कन्विंस कर देती है कि आप ही सही हो और जो आपके रास्ते पे नहीं है वो गलत है और उसको मार देना चाहिए, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर असैसिनेशन का एक अटेम्प्ट हुआ। ठीक है। उसमें एक स्पीच है बंदे की, उसका नाम मुझे भी याद नहीं है, बंदे का कॉमेडियन है, और वो कॉमेडी शो की तरह वो व्हाइट हाउस जो जर्नलिस्ट का डिनर हो रहा था, उसके अंदर वो बोल रहा है मेलानिया ट्रम्प को, वेलकम, यू आर ग्लोइंग लाइक अ विडो, एक्सपेक्टेंट विडो और समथिंग। ऐसा ह्यूमर प्रेसिडेंट ट्रम्प बच जाते हैं तो लोग ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, मर क्यों नहीं गया? ठीक है। सो जब आपकी सोच इतनी गिर जाए, और हम इसी सोच की तरफ जाना चाहते हैं, बाय द वे वी आर ट्राइंग टू फॉलो वेस्टर्न आइडियोलॉजी, हम मिडिल ईस्टर्न आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं, जहाँ पे लोग की रिस्पेक्ट करने का तरीका सही नहीं है। सो जब आप उस आइडियोलॉजी में चले जाओगे तो आप पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है। सो ज़्यादा खतरनाक तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, बिकॉज एक पढ़ा लिखा इंसान अपनी डिग्री के साथ में बहुत अनपढ़ गंवार लोगों को ये बताता है कि यार जब मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मैं सही हूँ, तुम भी ऐसे ही सोचो। तुमको तो सोचना ही पड़ेगा ऐसे। तो क्या ये जब मिलिट्री का अपना इंटेल या इंटेलिजेंस काम करता है, उनके लिए चीज़ें डिफिकल्ट कर देता है? बहुत डिफिकल्ट कर देता है, बिकॉज वो तो आपके साथ में बैठा हुआ है, एक इज़्ज़तज़ादा आदमी है, वो किसी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट में है, वो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो। एक सिंपल कह रहे कि सिविल सर्विसेज में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसका पार्ट है। बिल्कुल। क्यों, कितने लोगों को भी गवर्नमेंट ने रिमूव किया है, उनको सस्पेंड मतलब टर्मिनेट किया हुआ है। ठीक है। ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के अंदर रह करके करते हैं। आफ्टर ऑल, अगर आधार कार्ड आपके जो फर्जी आधार कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड बनते हैं, वो बाहर का कोई एक आम सिविलियन गरीब आदमी तो नहीं बना रहा ना, वो कोई गवर्नमेंट का जो नौकर है वही बना रहा है, पढ़ा लिखा जिसको गवर्नमेंट की नौकरी मिल रही है। ही इज मेकिंग इट, ही इज प्रोवाइडिंग इट। सो जब आइडियोलॉजी होती है वो डेंजरस होती है, दिमाग खराब कर देती है। एंड ये वाइट कॉलर वालों को फिर इसलिए भी यूज किया जाता है कि पैसे को राउट कर सके सही तरीके से। सो एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। पैसा है, शेपिंग है माइंड, रनिंग नैरेटिव है, दुनिया को बताना है। अच्छी आप इंग्लिश बोल सकते हो, अच्छी लॉ की भाषा यूज कर सकते हो, और आप बता सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। और कभी ऐसा होता था सर कि अगर आपने किसी मॉड्यूल को पकड़ भी लिया है, उनको बर्स्ट कर दिया हुआ है, उनका वो टेरर नेटवर्क बंद हो गया है, तो इमीडिएटली दूसरा बन जाता है जिसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। होता है। दीज आर कॉल्ड स्लीपर सेल्स होते हैं ना। तो आप ये तो काउंटर इंसर्जेंसी में, टेररिज्म ऑपरेशन में होता है। आपके देश में, हमारे देश में बहुत सेल्स हैं ऐसे, जरूरत पड़ती है तब वो एक्टिवेट होते हैं, और ये इनका काम ही होता है स्लीपर सेल्स का। तो ऐसे सर कभी आपको ये सवाल नहीं आता कि
ऐसे टेररिज्म को रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ईरान और यूएस के केस में भी देखा जा रहा है कि अगर यूएस ने एकदम अपफ्रंट जाके स्ट्राइक कर दिया ईरान में, तो उनके स्लीपर सेल्स जितने भी है पूरे दुनिया में कहीं होंगे वो एक्टिव हो गए। ऐसे सिनेरियोज लोग डिस्कस करते हैं। नहीं क्यों, ईरान के अंदर जो स्लीपर सेल्स है वो आपको कैसे लगता है कि इतने जो सारे टारगेट हिट हो रहे थे वो कैसे हो रहे थे? ईरान के अंदर भी तो एजेंट्स है। दिस इज हाउ जियो पॉलिटिक्स वर्क्स। दो नेशन, दो देश, दो ग्रुप, ये तो वॉरफेयर का तरीका है। बट यू कैन नेवर पुट अ कंक्लूजन टू दिस। नो नो, यू कैन नेवर। देयर विल ऑलवेज बी समबडी हु विल बी डिससैटिस्फाइड, और जो आपका पड़ोसी देश है वो उसका इस्तेमाल करेगा। पैसे दे करके करेगा, आइडियोलॉजी की तरह से करेगा, ब्लैकमेल करके करेगा, आपकी वीडियो गलत बना करके इस्तेमाल करके करेगा। दे विल यूज ऑलवेज, दे विल ऑलवेज बी समझे। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो फिर क्या कहते हैं, पूरी दुनिया अच्छी तरह चलने लगेगी। एंड अभी तो सबसे रिसेंट में श्रीनगर में देखने को मिला सर, जब जो खमानी थे ईरान के सुप्रीम लीडर, जब उनकी वहाँ पे डेथ हो गई, तो आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं लाल चौक में हो रहे हैं, श्रीनगर के एरियाज में ये हो रहे पहली हैं। बार तो नहीं हो रहा है, लेकिन अब इतने टाइम के गैप के बाद पहले भी हुआ है, हमेशा होता रहा है। आप लोग जिसे आप अभी देख रहे हो, मैं तो 60 साल से देख रहा हूँ, 40 साल 42 साल से देख रहा हूँ। बोर्ड, प्ले कार्ड, क्यों श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में झंडे लगते रहे पाकिस्तान के, वो आप लोग भूल गए क्या? ये बहुत ही एक दुर्भाग्य की बात है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे देश के कई लोग अपनी आइडियोलॉजी, देखिए एक स्पिरिचुअल गुरु मानना अलग होता है, मगर आइडियोलॉजिकल, क्यों कई लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, हम तो इंडियन नहीं है, हम तो ईरानियन है, ठीक है, मगर जा नहीं रहे ईरान, यहाँ रह करके बोल रहे। सो जब ये जो सोच होती है, ये कई सालों में धीरे धीरे करके भरी जाती है। जो लोग बोलते हैं उनको यही नहीं मालूम वो क्या बोल रहे हैं, बट वो रटी हुई बात है। उनको लोगों ने बताया, कई लोग बोलते हैं कि भाई हम तो जैसे पाकिस्तानी हैं, वो अपने आप को ये थोड़ी बोलते हैं कि वो उनके पास में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का डीएनए है। वो सब अपने आप को, कोई अरब बताता है, कोई पर्शियन बताता है, कोई पर इंडियन नहीं बताया, टर्किश बताता है। वो इंडियन नहीं बनाना चाहते। तो जब ऐसी सोच होती है, खराब सोच होती है, तो फिर उसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप इट विल टेक टाइम, इट रिक्वायर्स एजुकेशन। जो एक वो लीडरशिप है, उनको समझाना ज़रूरी है कि आप अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको सही चीज़ बताएं। हमारा ही देश नहीं स्ट्रगल कर रहा है, जिन लोगों ने ऐसी आइडियोलॉजी के लिए पैसा दिया है, आज वो भी उसकी मार से झेल रहे हैं। ठीक है, जहाँ से पैसा आता था ना इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, आज वो लोग भी मार देख रहे हैं। तो वो अपने देशों के अंदर भी, आफ्टर ऑल ईरान के अंदर फैक्शंस नहीं है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, हर जगह पे प्रॉब्लम्स है। बट यस, वहाँ पे एक बड़ा टाइट कंट्रोल है सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का, बिकॉज दे आर मोनार्कीज। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो आप पत्थर भी मारो, सब कुछ भी कर। अभी यूएई के अंदर आपने वीडियो बना के डाल दी स्ट्राइक होते हुए, आपको जेल डाल दे रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे इंडियन हो, अगर आपने जो ऑर्डर्स हैं उसके बरखिलाफ गए, यू आर इन द जेल। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग बोल रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी खबर बता रहे हैं। पर तो हम ऐसे कश्मीर में इस मॉड्यूल को रोक कब पाएंगे, क्योंकि इतने सारे नॉन स्टेट एक्टर्स तो कब से अलग काफी कम हुआ है ना। बट आप साहब, जो 90 में था वो 2000 में नहीं था, जो 2000 में था वो 2010 में नहीं था। आज बहुत कम है। ये समय लगेगा, ये स्विच ऑन ऑफ नहीं है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। बट क्या आपको लगता है कि वेस्ट एशिया में जो ये वॉर का पूरा सिनेरियो है, इसकी वजह से चीज़ थोड़ी सी हीट अप हो सकती है फ्यूचर में इंडिया के लिए? इंडिया की क्यों, हमारा कोई रोल ही नहीं है उसके अंदर। नहीं, जैसे जो अगर हमारे देश के लिए जो लोग यहाँ पे झंडा उठा के चल रहे हैं, ईरान की तरफ चल रहे हैं फर्स्ट करो, या पैलेस्टाइन की तरफ चल रहे हैं, ये वहां जाके लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लोग वहां से भाग रहे थे, हमें बचा लो, जहाज में बुला लो, फ्लाइट भेजो, हमें फटाफट बुला लो। तो भाई आप वहाँ पढ़ने गए थे, वहीं पे थोड़ा सा लड़ाई लड़ लेते उनकी तरफ से। ठीक है, सो बोलना और करने में बहुत फर्क है। हाँ, तो इवन आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लाया कि जो जेनजी है, जो यंग लोग है, वो काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ को सपोर्ट करने आ जाते हैं, चाहे पैलेस्तीन हो या
ईरान हो कि उनके साथ अनजस्ट हो रहा है, कुछ जगह हुआ भी होगा, बट लार्जली फिर लोग इस फीलिंग से आते हैं कि ये गलत कर रहे हैं हम. हाँ, बिकॉज जो जेंजी है, जेंजी की बात नहीं, हम भी जब यंग थे, ठीक है, तो दो चीज़ें होती थी. हमारी जो सोच होती थी और देखने का नज़रिया होता था वो उस टाइम के इवेंट पे होता था. वो एक पूरे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को लेके नहीं होता. ठीक है. फिर एक तो वो आज का जो जेंजी है वो आज के कंटेक्स्ट को देख के चलता है. वो ये नहीं देख रहा कि पहले क्या हुआ, आपके पास समय नहीं है. और जो नैरेटिव होता है ना, वो जो गलत आदमी का नैरेटिव होता है वो ज़्यादा अच्छी तरह चलता है इंफॉर्मेशन वॉर के अंदर. वो बैठ करके बनाए हुए अपना वीडियो बना के डालते जाओ, क्लिप डालते जाओ, फेक न्यूज़ डालते जाओ, क्लिक्स लाते जाओ. और वो चलता है. तो वो जब रिपीट होता है एल्गोरिथम, तो आपका भी माइंड उस तरफ शेप होता है. दूसरा जो एक यूथ का, एक हर यूथ, जब मैं भी यंग था, एक आइडियलिस्टिक माइंडसेट पे चलता है. सब लोग बराबर हैं. ठीक है. जो गाड़ी में चल रहा है वो ये नहीं देखा कि मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत से काम किया था इसलिए मैं गाड़ी में चल रहा हूँ. वो ये कहता है कि भाई मेरे पास गाड़ी है, उसके पास क्यों नहीं गाड़ी है. राइट. सो एक वो आइडियलिज्म में चलता है. और जब वो कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, तो एक सोशलिस्ट माइंडसेट, एक माइंडसेट ऑफ इक्वालिटी कम्स वेरी नेचुरली टू अ चाइल्ड. फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब देखता है यार मैं तो मेहनत कर रहा था, मैंने कमाया और मेरा पैसा काट करके तुमने उसको काम दे दिया जो ड्रग ले रहा था. ठीक है. बट वो आपको 5 साल 10 साल बाद में नजर आता है. इक्विटी फिर आपको समझ आती है, इक्वालिटी से हट गया. सो वहां पर आने के बाद में हर एक ये तो उसके साथ में हुआ, वो तो पैदा गलत जगह पे हुआ था, गरीब घर में पैदा हुआ था. तो वाई सो यू नो वी डोंट सी एट एवरी फेसेट ऑफ लाइफ. तो एक आइडियलिज्म में जब चलता है तो वो एक आइडियलिज्म उस टाइम पे कैंपसेस के अंदर सबसे ज़्यादा हिट किसका होता है? कम्युनिज्म का होता है. ऑफ कोर्स. राइट. इट्स सो इजी. राइट. और वो जब आप 3 साल 4 साल के बाद में इस बैड वर्ल्ड में आते हो, नौकरी ढूंढने लगते हो, फिर आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तब आपको कम्युनिज्म भूल जाता है. तब आपको पैसा कमाना याद आता है. यू नो उस टाइम पे आपको लगता है कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ही सब कुछ देगी, हम सब यहाँ बैठेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे. प्रोटेस्ट इज सो गुड. 99% बच्चे, 95% बच्चे निकल जाते हैं, मगर कुछ 1-2-5% बच्चे उसी में रह जाते हैं. और फिर वो पूरे सोसाइटी के लिए एक नासूर प्रॉब्लम बन जाते हैं. बिकॉज वो उन्होंने करना है. फिर वो वापस जाएंगे कॉलेज के अंदर, प्रोटेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे. रोड बनी नहीं तो रोड नहीं है. जब रोड बनने लगी तो रोड यहाँ से क्यों बन रही है? तो किसी किसान का जगह है या किसी की प्रॉपर्टी है. सो यू नो हर जगह से गलतियां ढूंढना, हर तरह से गलती ढूंढना, काम ना होने देना. सो अगर चाइना की बात अगर हम करें, अगर चाइना कम्युनिज्म के रास्ते पे चलता तो जहाँ चाइना आज है वहाँ नहीं होता. ऑफ कोर्स. रशिया की जो एम्पावरमेंट है वो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म, इट इज़ लार्ज नंबर ऑफ कैपिटलिस्ट थॉट व्हिच हैव यूज्ड. ठीक है. और एम्पावरिंग पीपल हु हैव गॉट कैपेबिलिटी, हु वर्क. 4 भाइयों में हर भाई काम नहीं करता है, बराबर नहीं होता. किसी में अकल होती है, किसी में ताकत होती है, कोई बंदा निकम्मा होता है, कोई अच्छा होता है, कोई डिसेंट होता है. सो दैट इज व्हाट द डेस्टिनी कम्स अबाउट. गवर्नमेंट का काम है एक इक्वल फुटेज प्लेटफॉर्म देना चाहिए. आप पढ़ रहे हो, एजुकेशन में हो, जाओ पढ़ाई करो, उसके बाद में आगे चलो. बट दे डोंट. सो दैट इज व्हाई द यूथ गेट्स वेरी इजीली कैप्चर्ड बाय द आइडिया ऑफ पैलेस्टीन फ्लैग उठा के चलो. और लास्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, आपने अच्छी क्वालिटी की जीन पहनी हुई है, और ये खासतौर से मैंने लड़कियों को देखा है, वहां पर जब ये कम्युनिज्म की बात होती है तो सडनली यू हैव टू डाउन ड्रेस. सही बोल रहा हूँ मैं? डाउन ड्रेस. बिकॉज यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप. You have to sit with them. You have to start telling. So you wear cheaper brands. You are cheaper saying. brands. You start associating, affiliating. Then questioning of parents. हर चीज के अंदर वो kind of a mindset starts coming into play. ये जब मैं भी स्कूल में था तो हमने भी यही किया.
ठीक है, नॉट दैट कि आई वाज फ्रॉम दिस, बट जो अमीर के बच्चे होते थे वो थोड़ा सा लोगों को बुरा ना लगे, उसके हिसाब से चलने लगते थे, राइट? सो दीज आर थिंग व्हिच हैपन, एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग. द प्रॉब्लम इज दैट यू स्टार्ट बिलीविंग टू डीपली, बिकम्स अ चैलेंज. ठीक है, फिर आप ग्रेटा थनबर्ग बन जाते हो जिसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जो वो चला रहा है एज अ फेस. ठीक है, पैसा कहाँ से आ रहा है? आफ्टर ऑल यू कमिंग ऑन अ बोर्ड शिप, झंडा लेकर के आप चल रहे हो, उसके अंदर पूरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है लड़कियों का और सब कुछ, और आप आ रहे हो. देयर इज अ होल इकोसिस्टम व्हिच गोज अबाउट इट, and it's very difficult. That's why ideologies are very dangerous. When you start owning them, you can't get away from them, and then your balance goes out. And it's very hard to stay unbiased when you are young. It is impossible. आपको वो peer group ही नहीं मिल पाएगा कभी. आप उस peer group में आने के चक्कर में आप कोई ना कोई side लोगे. Yeah. And speaking about youth, I actually wanted to speak about the Make in India initiative as well, sir. Especially during Operation Sindoor, हमने काफ़ी capabilities देखी in action of our own, whether it was the air to surface missiles or whether it was in general our missiles. हमने हर जगह रोल देखा इंडियन डिफेंस का, और इन जनरल की एक MSME सेक्टर या एक स्टार्टअप सेक्टर कितनी वैल्यू ऐड कर सकता है हमारे सिस्टम में. तो आई genuinely wanted to ask you this question also, that as a seasoned veteran yourself, जब आप ऐसे नए सेक्टर्स को देखते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो या फिर वो डिफेंस सेक्टर से हो, जब वो पार्ट बनते हैं इंडियन आर्मी का और वो इंडियन आर्मी को हेल्प करती है, डिफेंस सेक्टर को हेल्प करते हैं, आप उस मूवमेंट को कैसे देखते हैं? जब आप एक डिफेंस सेक्टर को देखते हो तो आप बहुत एक नैरो बैंडविड्थ में चले जाते हो. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग थी सस्ते वाली, कपड़े सिलाई कर दिया और चलते बने. बट जो एक नीश, एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, AI ड्रिवन हाई एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जब आप उसमें चलते हो तो वो जो एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है, वो बनता है. तो लाइक आई गिव दिस, मैं AMS एडवांस मेडटेक सॉल्यूशंस के उसमें एक बार टॉक में गया था, तो जब उनके बारे में इंक्वायर कर रहा था तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि जो इनके फाउंडर ओनर हैं, विजय जी, सालों लगा करके विदेश के अंदर वहीं रह करके सडनली ही डिसाइड्स कि मैं अपने देश में जा करके वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा इन मेडिकल सेक्टर. मेडिकल सेक्टर, फॉर लाइक आई एम नॉट सेइंग ओनली मेडिकल सेक्टर, कहीं भी आप किसी भी सेक्टर में आओ, बिकॉज एक एक्सपीरियंस है, आपने वहाँ पे वर्ल्ड टॉप इंडस्ट्रीज को देखा है, सिस्टम को देखा है, काम करने के तरीकों को देखा है. तो जब आप वहाँ से पढ़ करके या वहाँ की सिस्टम को ले आ करके यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हो, तो कई चीज़ें होती हैं. हम एक चीज़ देखते हैं, बहुत डायरेक्टली नौकरी को देखते हैं, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी. मैं उसको नहीं देखता नौकरी को. यही ब्रांड, जैसे इनके जो AMS का जो ब्रांड है, आज तकरीबन 100-120 कंट्री के अंदर इनका सामान सेल होता है, राइट? तो जब ये ब्रांड वहाँ जाता है, AMS लिमिटेड फ्रॉम इंडिया, देश की इज्जत बनती है. आपको ज़रूरत है. आज हम कई ऐसी मेडिसिन हैं जिसके लिए हमको चाइना के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है. ठीक है, कई ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसके लिए हमको चाइना पर डिपेंड होना पड़ता है. तो कई बार आपकी जो जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, यू हैव टू बी स्ट्रांग अगेंस्ट अ कंट्री, आप नहीं हो पाते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि कितनी जानें उस मेडिसिन के ऊपर निर्भर करती हैं. तो आप एक पोजीशन नहीं ले पाते. तो जब वो चीज़ यहाँ बनने लगेगी तो वो लेवरेज जो विदेश के लोगों का है आपके ऊपर, वो कम हो जाएगा. आपकी जब चीज़ बन के बाहर जाएगी तो आपकी लेवरेज बन जाएगी. दैट मीन्स आई एम नॉट सेइंग, इंडिया कभी भी किसी दूसरे देश को गलत काम करने के लिए नहीं बोलता, फोर्स नहीं करता. मगर अगर आपने वैक्सीन दी कोविड के टाइम पर, तो जिस देश को आपने वैक्सीन दी, कम से कम कुछ तो आपसे उनको फायदा होगा, आपको उनसे फायदा होगा. वहाँ पे AMS जैसे प्लेयर्स हेल्प कर सकते हैं. तो AMS जैसे प्लेयर हेल्प करते हैं. फिर
जब ये इंडस्ट्री बनती है, इसी इंडस्ट्री के अंदर जो सामान जाता है सस्ता सामान होगा, बिकॉज हमारे यहाँ का सामान है, ठीक है, हमारी लेबर, बिकॉज जो चीज़ अमेरिका से बन के आएगी या वेस्टर्न कंट्री से बन के आएगी, वो अगर वो 50 रुपए की है, यहाँ पे जब बनेगी वो 30-35 की हो जाएगी, कॉस्ट एक आम आदमी को कम पड़ता है. देन यू लुक एट द अदर इकोसिस्टम. जब ये फैक्ट्री होती है तो एक बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं. सो आई विल नॉट से बटरफ्लाई इफेक्ट, आई जस्ट से देयर इज एन इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है उसका, कोई एक उसका पर्टिकुलर टर्म है, मुझे याद नहीं आ रहा. वो जब 1 करोड़ का आप बिजनेस या कोई इंडस्ट्री चलाते हैं तो वो 7 गुना उसका इफेक्ट होता है. जैसे ये पूरा एएमएस का कॉम्प्लेक्स बना यहाँ पर, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है हमारे देश में बना, कोई बनाने वाला कारपेंटर था, कोई मेजन था, कोई बिजली का प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी थी, वहाँ के जो बंदे थे जो एम्प्लॉय हुए इसको बनाने में, इसको कंस्ट्रक्ट करने के अंदर, इसी के अंदर यहाँ पे जो मशीन पुर्जे हैं जब वो बने उसको चलाने के लिए, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको लेके आने जाने के लिए, जब वो गाड़ियाँ आती हैं तो वो पेट्रोल लेती हैं, उनका मेंटेनेंस होता है, वो जो ड्राइवर होता है वो चलता है उसके साथ में उनके लिए. तो अपने एम्प्लॉयमेंट बहुत सारी क्रिएट कर दी. सो दैट 1 करोड़ गोज आउट 7 टाइम्स इनटू द इकोसिस्टम फॉर एक्सपेंडिचर. फिर एक साइंस टेक्नोलॉजी का एक इकोसिस्टम तैयार होता है. जितने लोग यहाँ पे रह करके, यहाँ से अगर वो बाहर चले जाएंगे तो बाहर के लिए काम करेंगे, मगर अगर हमारे देश में रह करके पढ़ाई करते हैं, पढ़ करके आके काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसका जो इफेक्ट है वो हमारी जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर पड़ेगा. फिर जो छोटे छोटे सामान इनको बनाने के लिए लगता है, वो सामान यहाँ पर असेंबल होगा, उसको असेंबल करने वाले बंदे आएंगे. तो एक टेक्नोलॉजी का भी एक एक्सपेंशन, एक एक्सपीरियंस, मैन पावर, स्किल सेट, इक्विपमेंट, वो सारी चीज़ें तैयार होती हैं ताकि जब उसको स्केल करना पड़े तो स्केल होगा. और इस इंडस्ट्री में अगर नहीं इस्तेमाल होगा तो किसी और इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो जाएगा. एंड प्लस मेडिकली तो सर वी हैव बीन अ डोमिनेंट फोर्स एवर. अगर आप कंपेयर करें रेट्स को, वेदर यू आर गोइंग फॉर अ सर्जरी और इन जनरल आप ओपीडी में भी जा रहे हैं, आप यूएस, यूके, कहीं किसी और कंट्री से कंपेयर करेंगे कि इंडिया में आपका कितना प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा है. सो वो डॉक्टर्स, वो फैसिलिटीज़ की कॉस्ट का था, मगर इक्विपमेंट हम बाहर से बहुत लेके आ रहे थे. यू नो, लाइक वॉल्स हैं, सूचर्स हैं, नीडल्स हैं. जैसे नीडल्स इनके पास, इस कंपनी के पास में जापान से आती थी, बिकॉज जापान हैज गॉट द बेस्ट सिस्टम ऑफ मेकिंग नीडल्स. सूचर्स इनके पास में साउथ कोरिया से आते थे. अगेन दे आर पॉसिबली द बेस्ट इन दैट. अब ये इन्होंने यहाँ बनाना शुरू किया. नाउ यू इमेजिन इफ यू गेटिंग वही चीज़ उसी क्वालिटी की आपको इंडिया में बन रही है, कॉस्ट, रेट, इमीडिएट अवेलेबिलिटी. कल को अभी हम ईरान के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेटेजी डिनायल, कोई डिस्ट्रप्शन होता है, कोरोना वायरस को कोई चीज़ बनती है, तो आपको साउथ कोरिया की वेट नहीं करनी है कि आपके पास में सूचर्स आएंगे तब जाकर के किसी का ऑपरेशन होगा और फिर वहाँ पे इस्तेमाल होगा. जब आपके देश में बन रहा है तो आपको किसी सिस्टम पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है. एंड ओ बाय द वे, अगर ये ज़्यादा बनेंगे, हमारी कंजम्पशन से ज़्यादा बनेंगे, तो हम किसी दूसरे देश को बेचेंगे, ग्लोबल साउथ को बेचेंगे. तो कल जब एक जियो पॉलिटिकल एरिया में हमें उनकी ज़रूरत है तो वो हमारे साथ देंगे. तो ये एक छोटी सी चीज़ है, ऐसी कई सैकड़ों, हज़ारों, लाखों चीज़ें हैं जिसके लिए हमें इन सब चीज़ों के ऊपर मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड कंसेप्ट के ऊपर चलना है. एंड दैट इज वेयर आई थिंक AMS is doing a good job. Yeah. And I think it's globally adding the value for it. मतलब the brand AMS will be shown across the countries when, let's say, we are supplying our products or AMS is supplying their products outside. Like today I just met a Colombian lady. She's come from Colombia all the way to this facility to make whatever deal they have to make. Yeah. So it looks nice, it feels nice. वरना पहले इंडियंस जाया करते थे बाहर कि डील हो जाए किसी तरह. So yeah, that's a change that's happening. And even in general, sir, I wanted to ask you this, and this almost puts the conclusion to our conversation as well. There are a lot of people, especially young people, who always wanted to be part of force. Tri services I'm referring to. But of course,
some might have technical reasons or medical reasons, or they couldn't be part of the force because of XYZ reasons, but they eventually wanted to serve the country. Now, because this wave of entrepreneurships or having your own startup is rising, it's a time when people can actually contribute to the country and its economy. So, when you see this atmosphere in this country, what is your piece of advice for the young Indian listening to this who wants to add value to the country? तो अगर आपने नौकरी करनी है तो नौकरी होती है, ठीक है, मगर आज इतनी सिस्टम्स हो गए हैं, छोटे छोटे सिस्टम, जैसे आप लोगों की टीम है, आप अपने लिए काम कर रहे हो. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग स्मॉल थिंग्स ऑन देयर ओन टाइम फॉर देमसेल्व्स. आई थिंक द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू वर्क फॉर योरसेल्फ इफ पॉसिबल, राइट. आपका अल्टीमेट एम अगर देश सेवा करना था, ठीक है, भाई आफ्टर ऑल फौज में क्यों आना चाहते हो आप? एक तो लोग कहते हैं ग्लैमर, बट आमतौर पे आदमी फौज में इसलिए आना चाहता है कि ही वांट्स टू सर्व द नेशन. अगर हर एक आदमी को सर्व द नेशन आर्मी में आके नहीं मिलता है या एयरफोर्स नेवी में आके नहीं मिलता है, तो उसके कई तरीके और भी हैं. अच्छे सिटीजन बनो, सबसे पहली बात ये. सेकेंड इज फाइंड समथिंग विच यू कैन डू. और आप अगर पढ़े लिखे हो, थोड़ा रिस्क ले सकते हो, तो आप कुछ ऐसा काम शुरू करो जिससे 3 या 4 लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें समझदार मिल है. सके. सबसे बड़ी देश सेवा एम्प्लॉयमेंट देनी होती है, ठीक है. अगर आपकी तनख्वाह से और आपकी मेहनत से 2 आदमियों का घर चलता है, उससे बड़ी देश सेवा, समाज सेवा और कुछ नहीं सकती है, राइट. सिस्टम हमारा चेंज हो रहा है, मगर इतना चेंज इतना अच्छा नहीं हुआ है कि जो हम एक आइडियल सोसाइटी जिसमें एसएमई सबको बहुत फ्री फ्लो मौका मिले, वैसा चांस हो जाए. बट वी आर ऑन दैट पाथ. आज से 20 साल पहले जो हमारे देश में सिस्टम था, स्ट्रगल था किसी चीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए, आज उतना नहीं है, राइट. आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, और ख़ास तौर से देखो 2-3 इंडस्ट्री हमेशा चलेगी, ठीक है. एक है डिफेंस इंडस्ट्री, और डिफेंस इंडस्ट्री के कई इकोसिस्टम होते हैं. कम्युनिकेशन, हाई एंड सैटेलाइट से लेकर के एक नॉर्मल, आज तो मैं इसको ही बोलता हूँ ड्रोन या रोबोट बनाना, राइट, हथियार बनाना, बहुत सारे इकोसिस्टम. जो बड़े पावरफुल देश हैं उनके यहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स देश को चलाता है, ठीक है. दैट इज़ वन. सेकेंड इज फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल. इट इज़ द मोस्ट, आप कहीं भी चले जाओ, आपको डॉक्टर, मेडिकल की दवाई की दुकान, इक्विपमेंट की दुकान या डॉक्टर्स की क्लिनिक आपको जरूर मिलेंगे. किसी न किसी, कहीं भी आप चले जाओ, एक गली में चले जाओ, आपको पक्का 1 या 2, वहाँ पे किसी शॉपिंग सेंटर में चले जाओ, 5-6 दुकानें आपको पक्का मिलेंगी. सो दैट इज़ वन. द थर्ड विच इज़ नाउ कमिंग आउट and people can always invest their mind is on renewables, right. That is a future. So you need to work on that. Baki to khair, of course there is insurance and other things, so I'll not name all that, but you must try and get into renewables. AI of course is coming up in a big way. Everyone wants to be part of AI. Be part of AI. So you must encash on AI, and AI is important because हमारा देश बाकी सभी चाइना से टेक्नोलॉजी के मामले में 2 या 3 दशक पीछे रह गया था. AI के ऊपर अगर हमारा देश चलेगा तो वी मे कम वेरी क्लोज टू द चाइनीज एंड द वेस्ट. वी नीड टू फोकस ऑन AI. Deep tech basically. बट द लास्ट थिंग जो मैं यूथ को बताना चाहूँगा कि अपने देश के ऊपर भरोसा रखो, अपने देश के ऊपर इन्वेस्ट करो. एंड दैट इज़ वाई आई एम वेरी, इट इज़ नाइस दैट पीपल लाइक विजय एंड विजय जी एंड समीर, उनके बेटे, दे हैव कम ऑल द वे एंड दे आर इन्वेस्टिंग their time and effort in their own country. Invest in your country. दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन रहोगे.
और एक समय आएगा कि आपको भय भी लगेगा. जाओ, पैसे कमाओ, earn, train yourself, gain knowledge, but then come back and invest in your country. 100%, sir. Well, thank you so much for your time, sir. It was indeed insightful for me to learn so many things. I hope you had great time. I hope I was able to ask some different things here for you. Good, I enjoyed Aftab. Thank you so much, sir, for your time. Thank you. Jai Hind. Jai Hind, sir.